فیض حمید صاحب نے جب جرگہ بلایا آپ بتا رہے تھے. جی ہاں، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت تو پہلے میرا خیال ہے کہ فیض حمید صاحب نے خود ڈائریکٹلی مفتی ولی الرحمان جو ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے ان کے ساتھ باتیں کر لی، لیکن اس کے اوپر ٹھپا لگانے کے لیے قبائلی لوگ بھی بھیجے تاکہ ان سے بات کر لیں. انہوں نے بھی بات کی، وہ تو نہیں بنی. پھر انہوں نے علماء کی بھی ایک ڈیلیگیشن بھیجی تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں، وہ بھی گئے، بات نہیں بنی. اور بات اس لیے نہیں بنی جو میں نے ایک انہی قبائلی لیڈر جو انہوں نے بھیجے تھے ان سے سنی کہ جنرل فیض اور مفتی ولی الرحمان کا فاٹا کے بارے میں یہ آپس میں طے ہوا. ولی الرحمان چاہتے تھے کہ فاٹا کو واپس فاٹا بنا لو، ٹھیک، اور کے پی میں جو ضم ہوا ہے وہ واپس ہو جائے، ضم واپس کر لو. تو اس پہ ایگریمنٹ یہ ہوا، شاید یہ فیض حمید صاحب کی تجویز ہوگی یا دونوں کی ایگریمنٹ، کہ ہم فاٹا کے معززین سے پوچھ لیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے مرجر پہ ٹھپا لگا دیا تو مرج آلریڈی ہو گیا، اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ریورس کر لو تو ٹھیک ہے، کر لیں گے. تو ولی الرحمان نے، میں نے سنا ہے کہ اس نے جیسے قبائلی طریقے میں رواج، انہوں نے کہا دعا کرے اس بات پہ. تو فیض حمید صاحب نے کہا کہ ہم پوچھیں گے فاٹا کے معززین سے، اگر میجارٹی نے کہا کہ مرجر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر میجارٹی نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تو نہیں ٹھیک ہے. بالکل بھائی، اس پہ دونوں کا آپس میں طے ہوا. اب وہ یہاں جاتے ہیں، یہاں پہ شاید ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ تم کیا کر آئے ہو، یہ تو ہم نہیں کرتے، ریورسل نہیں ہے. تو اس پہ بات ختم ہو گئی. جو بات جہاں تک گئی تھی وہ ادھر ہی رک گئی، بات مر گئی، ختم ہو گئی. تو یہ اس طرح طریقہ نہیں ہوتا بات چیت کا. جب شمالی اتحاد والے طالبان کے ساتھ لڑ رہے تھے، پرانی بات ہے، اس وقت برہان الدین ربانی جو افغانستان کا صدر تھا، اس نے نواز شریف صاحب کو، ہمارے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ٹیم بنا لے کہ وہ ہمارے اور طالبان کے درمیان بات کر لے، ہمیں کسی اس پہ تصفیے پہ لے آئے. تو نواز شریف صاحب نے ٹیم بنا لی، ہم 4 آدمی تھے، میں بھی اس کا ممبر تھا. اور آپ اس وقت فورن آفس میں تھے، جنرل افغانستان تھا. تو ہم 3 سال تک وہ نیگوسیشن کرتے رہے، 97 سے لے کے مشرف کے ٹیک اوور تک. تو ہم 99 اکتوبر تک ایگزیکٹلی ہم کرتے رہے. ہم سے کہیں پہ بھی کسی پریس والے کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں. ملا عمر سے ملتے تھے، احمد شاہ مسعود سے ملتے تھے، سارے جو افغان لیڈران ہیں ان سے ملتے تھے تاکہ ان کو ہم ایک فیصلے پہ لے آئے. فائنلی فیصلے پہ ایگری بھی کرا لیا کہ احمد شاہ مسعود ملا عمر کے ماتحت کے حساب سے پنجشیر چلائیں گے، سرنڈر کر لیں گے، لیکن چلائیں گے وہ. تو آپ لوگوں نے اپنے نیگوشیشن سے یہاں تک ان کو لے آئے تھے کہ احمد شاہ مسعود پنجشیر تک سرنڈر کرے گا اور پنجشیر تک اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے صرف اس کے ایڈمنسٹریشن پنجشیر وہ چلائے گا، لیکن وہ بھی ملا عمر کے خواہشات کے مطابق یہاں تک لے آئے تھے آپ ان ایگزیکٹلی. بالکل دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہوا. اب ہم جب دونوں کو لانے کی باری آ گئی، ادھر پاکستان میں بدقسمتی سے نواز شریف کی حکومت گئی، مشرف نے کوک کر لیا. تو یہ قصہ میں یہ کہانی اس لیے سنائی کہ جنرل فیض صاحب کو بھی اگر نیگوسیشن کرنے تھے، یہ بڑی سینسیٹیو باتیں ہیں، تو یہ ذرا ہم کوائٹ کر لیتے، پبلک میں نہ لاتے. جب تک کہ اب ہم نے کوئی چیز پبلک میں نہیں لائی. اب ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ معاملہ یہاں تک چلا. پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے وہ ہمیں مارتے رہے، ہم بھی جتنا ہو سکا ان کو مارتے رہے، لیکن زیادہ مار تو پاکستان کے اندر ہمیں پڑی ہے. ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو گئے، پولیس والے افسر شہید ہو گئے، بڑے بڑے لوگ اس میں شہید ہو گئے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ جنگ ہے. اور خاص کر جب ایک آدمی اپنے مرنے پہ تیار ہو جائے، سوئسائڈ بنتا ہے بمبر، تو اس کو روکنا آلموسٹ امپاسبل ہے.
बिकॉज वो इस पे तैयार है कि मैं जिधर भी उड़ गया। तो हमारे लिए उसको रोकना खासा मुश्किल है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम दूसरी हुकूमत को कहें, काबुल को, कि इनको यहाँ से निकालो वरना इस पे हम नाराज होते। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी बात सही है, आपके दुश्मन को वो क्यों रखे, अफगानिस्तान के सॉइल को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने क्यों दे? क्योंकि दोहा में उन्होंने अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट भी किया था। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ टीटीपी ही एक मिलिटेंट ग्रुप है। दोहा में उन्होंने एग्रीमेंट ये किया था कि हम अपनी सॉइल को किसी मुल्क के खिलाफ टेररिस्ट हमले नहीं, मेरा ख्याल है अगर मैं गलती न करूं, एग्रीमेंट ये था कि अफगानिस्तान की सॉइल अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली। लेकिन बहरहाल दुनिया कहती है तो मैं भी उसके साथ कहता हूँ कि अफगानी सॉइल किसके खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो उन्होंने किया है। लेकिन इस मसले को अगर आप सियासी तौर पे बातचीत के जरिए प्रॉपर तरीके से उन लोगों के जरिए से जो इस मसले का हल जानते भी हैं, निकाल भी सकते हैं, आप करवाते तो शायद आपका रास्ता आगे चल पड़ता। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने जर्नल भेजा, उसने जिस तरीके से किया उसका सत्यानाश कर लिया किसी का। तो खराबी टीटीपी से शुरू हो गई। फिर हमारे आर्मी चीफ ने एक बयान दिया कि एक पाकिस्तानी अगर मेरा शहीद होता है तो ये अफगानिस्तान के बराबर तकरीबन, इस तरह बयान अगर मैं गलती जी, उससे ज्यादा एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा अहम है मेरे लिए। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट बाय अ पर्सन एट सच ए बिग पोजीशन। अगर दिल में है भी तो मुंह पे तो न कहो, उससे ताल्लुकात मजीद टेंशन बढ़ती है, खराबी बढ़ती है, दूरी हमारे वैसे भी आपस में है, मिसट्रस्ट है, डिस्टेंस है एक दूसरे से, तो वो भी अगर लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट अयाज साहब मेरा ख्याल है टीटीपी को लेकर है exactly, कि जो हमले कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की कि हमारे लोग मर रहे थे, चीनियों को यहाँ पे नहीं छोड़ा, मारा, उनको तो खास तौर पे टारगेट बनाते हैं। लेकिन एक बात है, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि अफगानिस्तान में सिर्फ टीटीपी है या और मिलिटेंट्स भी है, और भी हैं। चीन के मुखालिफ जो ग्रुप है वो है, ताजिकिस्तान के खिलाफ जो ग्रुप है वो है, रूस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, यू नेम ए कंट्री इन द रीजन जिनके वो लोग वहाँ पे हैं सब। एक मौका पे अगर मैं गलती न करूँ, ट्रम्प पिछली दौर में कहा था जब जा रहा था उन दिनों कि शायद कोई 40 मिलिटेंट्स ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर। दूसरे मुल्कों ने अपना बंदोबस्त उनके खिलाफ कर लिया। मैं चीन का मिसाल दूंगा। चीन के ETIM वाले खासे एक्टिव थे एक ज़माने में सिंचियांग प्रोविंस में। तो चीन ने पहले तो ये किया कि अफगानिस्तान का जो हिस्सा चीन के साथ वहाँ मिलता है, वाखान कॉरिडोर का, उधर उन्होंने किले बना लिए, 1 या 2 शायद किले बनाए ऑब्जर्वेशन के लिए कि बॉर्डर को हम कंट्रोल करें। और सिंजियांग के अंदर उन्होंने इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट कर ली कि उनकी जो महरूमियत थी वो कुछ हद तक एड्रेस कर ली कि बाकी चीन के बराबर है। अब आप उसी तनाज़र में अपने फाटा को देख लें। ये टीटीपी वाले भी तो ज़्यादातर फाटा के लड़के हैं, आपके मसूद ज़्यादा है। तो फाटा में आपने 1947 से लेके अब तक क्या किया? मर्जर तक भी आपने कुछ नहीं डेवलपमेंट नहीं की। फिर मर्जर का किस्सा आपने सुनाया, जन्नत नुमा एक सिनारियो पेश कर लिया, मर्ज हो गया तो जन्नत बन जाएगा। अब वो मर्ज हुए भी तो 6-7 साल हो गए, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट है? उसी तरह महरूमियत है। वो जो ऑपरेशन किए उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस करना था, जो उनका रोजगार बहाल करना था, उनके घर बहाल करने थे, लाइवलीहुड देना थी उनको, वो नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली कोई उसमें वो चीज़ नहीं हुई, बल्कि वादा हुआ था, रिकॉर्ड पे है कि सालाना 110 अरब रुपए ये फाटा के डेवलपमेंट के ऊपर लगेंगे सालाना। तो 6-7 साल तो हो गए, अब कितने पैसे लगे फाटा के ऊपर?
ये दूसरी कहानी, इसको छोड़ देते हैं. तो कमिंग बैक टू टीपी, लेट मी नाउ टेल यू अबाउट टीटीपी. हम सरफेस पे तो देखते हैं टीटीपी हमें मार रही है, हम उसको मारेंगे, बिल्कुल सही है. लेकिन आप टीटीपी को देख ले, वो बनी कैसे, क्यों बनी, किसने बनाई, कौन लोग बने उसमें. अगर याद हो 2006-07 में बैतुल्ला मसूद जी साउथ वजीरिस्तान में मसूद इलाके में वो एक लीडर अचानक रोनुमा हुआ. हालांकि कबायलियों का एक अभी तक रिकॉर्ड है कि जब तक आप अपने ट्राइब के अंदर कोई हैसियत नहीं रखते तो आप लीडर नहीं बन सकते. विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर ट्राइब यू कैन बिकम ए लीडर. बैतुल्ला हैड नो सपोर्ट एट ऑल. So how come he becomes a leader of the entire Masood tribe of the South Waziristan? वो वहाँ पे बैठा है, आपके फौज को मार रहा है, फौज उसको मार रही है, वो किले फतह कर रहा है. अगर कुछ ज़्यादा जाऊँ तो शायद हम दोनों फिर गायब हो जाएंगे, वरना कुछ उसमें वो गायब के बगैर वाला अगर हम कर ले तो बेहतर है. तो मैं इस पे सेंसिटिव बात नहीं करता, छोड़ दो. मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसी थी उस वक्त, वो पाकिस्तान की तबाही का बायस बनी. एक तो वार ऑन टेरर 9/11 के बाद अमेरिका और अफगानिस्तान का मसला है, वो लड़े आपस में, मारे एक दूसरे को, हमें उसे क्या लेना देना. पराए जंग में हम कूद पड़े, फ्रंट लाइन एलाय हम बन गए अमेरिका नेटो के साथ. तो वो उन्होंने शायद पॉवेल साहब ने उनको फोन किया था ना, वेदस या हमारे साथ हैं कि हमारे खिलाफ हैं आप. अब मुसीबत ये है कि अगर एक टेलीफोन पे आप ढेर होते हैं तो आप फिर कैसे कमांडो है, आप फिर कैसे जर्नल है. और फिर दूसरी बात ये है कि अगर अमेरिका टेलीफोन आपको करता है तो उसे कहें कि देखिए अफगानिस्तान के पड़ोस में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसके अलावा चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, 5 मुल्क और हैं इसके गिर्द, और वो सारे यूएन के मेंबर हैं. अगर ये वार ऑन टेरर यूएन के अप्रूवल लानिश आर्टिकल के नीचे अगर चलता है, मुल्कों पे फर्ज है कि अमेरिका को रास्ता दे, तो अमेरिका पाकिस्तान से क्यों मांग रहा है, सिर्फ बाकी लोगों से भी तो मांग ले. तो आपके ख्याल में मुशर्रफ साहब का अपना भी इंटरेस्ट था इसमें? ऑब्वियसली. देखो जब तक वार ऑन टेरर नहीं हुआ था, आप मुशर्रफ को देख ले, उसकी अब बात लंबी हो जाएगी. मैंने मुशर्रफ को यूके में खुद रिसीव किया है. आई वाज कॉन्सल जनरल इन मैनचेस्टर. मैंने खुद देखा है एयरपोर्ट पे बरतानिया की तरफ से एक क्लर्क तक नहीं आया उसको मिलने के लिए. वो यूएन जा रहा था, कोई नहीं आया. उसके लोग जिंदा होंगे जो उसके साथ गए थे उस विजिट पे. लेकिन जब वार ऑन टेरर में उसने फलटा खाया तो माशाल्लाह फिर तो डार्लिंग बना वेस्ट का. तो उसने अपनी रिकग्निशन, अपनी लीडरी के लिए मुल्क को दाव पे लगा लिया, पराए जंग को अपने घर ले आया. तो उससे टीटीपी ने जन्म ले लिया. उस पॉलिसी पे कि आप तालिबान को पकड़ते थे, उनके हवाले भी करते थे, और शायद एक दो ऑन द क्वाइट कहते कि शाबाश से जाके लड़ो. अफगान सफीर के साथ आपने क्या हशर किया यहाँ पे, मुल्ला ज़ईफ का, तो वो अरेस्ट किया था. उसका किताब पढ़ा, जरा उसका किताब पढ़ो. आप शर्म के मारे छुपने की जगह आपको नहीं मिलेगी. सफीर है, सफीर को पूरी दुनिया में हर मुल्क में इम्यूनिटी होती है, आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे. आपने उसको पकड़ के अमेरिकनों के हवाले कर लिया. उसने किताब लिखी है, ये मैंने उसमें पढ़ा कि अमेरिकनों ने मुझे एयरपोर्ट के ऊपर नंगा कर लिया, जहाज में चढ़ाने से पहले नंगा करके टुडे मारे मुझे, गालियां दी, फिर ले गए गुंटानामो बे को. तो ये चीजें भूलने की तो नहीं है. ये मुशर्रफ साहब के उस पॉलिसी के बदले. फिर उस सर ये मैं गुजारिश करूं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि हम टीटीपी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर कत्लो गारत करी हो रही है, तो ये प्रॉक्सिमेट कॉज
तुम नहीं बनता कि जो कुछ माजी के अंदर हमने उनके साथ करते रहे हैं। उसी को आगे ले आओ तो ठीक है। फिर बन जाता। आपने जब एक बंदे को बदमाश बना दिया तो उस बदमाश को तो अपनी बदमाशी करनी है, क्योंकि आपने भी उसको बदमाश तस्लीम कर लिया, आप उसके साथ लड़ते रहे। फिर ज़रब अज़ब आया, छोटे किसे जल्दी कर ले, ठीक है। ज़रब अज़ब जनरल राहिल शरीफ वाला, वज़ीरिस्तान की इंड से इंड बजा दी। उस वक़्त बयानात आते थे कि हमने इनको या तो मार दिया टीटीपी को या इनको मुल्क से निकाला, अफ़गानिस्तान चले गए। आप खुश हो रहे थे कि इलाका साफ हो गया, एक बंदा भी यहाँ पे नहीं है। तो फिर अगर एक बंदा नहीं था, आपने वज़ीरिस्तान सारा डिस्ट्रॉय कर लिया इसलिए कि इनसे जान छूटे, मार दिया, एक रास्ते बॉर्डर चले गए, तो देन हाउ कम कि वो वापस आ गए आपके पास? वापस आपने कैसे? बाढ़ भी लगाई, आप माशाल्लाह पूरे बॉर्डर पे हमारी फौज है, हर जगह पे कोई 500-600 तो शायद हमने किले छोटे छोटे बनाए। तो हाउ कम दिस पीपल अगेन इन्फिल्ट्रेट कैसे करते हैं? इन्फिल्ट्रेट कैसे कर ली? सवाल तो उठता वो तो है। रेड्स करते हैं ना सर, बॉर्डर के देखो- ऊपर रेड्स करते हैं। और वो जो लेटेस्ट जिसके अंदर ये 14 जो 16 सिक्योरिटी हमारे फौजी जो हैं उन्होंने शहीद किए हैं, उसमें वो कहते ये हैं यहाँ पे कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान की पोस्ट्स बनी हुई थी उनको इस्तेमाल किया उन्होंने। देखो, ये तो उनके आपके जहाज़ों के बमबारी के रिटेलिएशन में किया था। जब आपने बमबारी तो बाद में हुई सर, बमबारी- 4 दिन बाद हुई उसके। बमबारी पहले हुई आपका। देखो, 3 इंसिडेंट है सर। गड़बड़ न करो, मैं बताता हूँ। हाँ। आपने एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब को भेजा काबुल में, जो आपने एनवाई बनाया दोबारा अफगानिस्तान के लिए। वो वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर से ताज़ियत कर रहा है उसके चाचे की शहादत पे, उनके साथ बातचीत कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत कर रहा है और उनसे मिल रहा है। वो उधर ही है, बातचीत कर रहा है, जहाज आते बमबारी करते हैं और ये बातचीत कर रहे हैं। तो उनको उधर ही उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी बात सुने या जहाज़ों की बात सुने। ठीक है। आई मीन दिस इज हाउ यू आर हैंडलिंग अफगानिस्तान। लेकिन सर नहीं मैं होना मैं चाहिए। मैं वाकयात जिस तरह हुए ना मैं उसी तरह बयान कर रहा हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मुझे इसके अंदर ये जो मैं आप किसी की कहते हैं, फेवर ये जो या आप वो नहीं कहते कर हैं, रहा है। मैं समझ गया। ये जो आप कहते हैं, ये 16 नहीं, इसके बाद कोई शायद 40-45 लोग, बल्कि बॉर्डर तकरीबन गर्म हो गया जी। अफगान तालिबान ने बॉर्डर पोस्ट को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके जी। तोपों से इधर फायर कर लिए, लोग मार दिए। जी। बेशक कर लिए, वो तालिबान भी कहते हैं कि हमने उसे इनकार तो शायद नहीं किया, लेकिन वो उसके रिटेलिएशन में कि हमारे पास जहाज नहीं है, तो दिस इज आवर वे ऑफ रिस्पांस टू योर अटैक एन आवर कंट्री। तो बात तालिबान इसकी टीटीपी की हो रही थी। टीटीपी अब वहाँ पे बैठा है, आपको तकलीफ है, हमें तकलीफ है। अब अगर ये मसला हम जहाज और तोप से ख़त्म कर सकते हैं तो 20 साल तक तो हम इनके खिलाफ लड़ रहे थे, ज़रब अज़ब कर लिया। कितने ज़रब अज़ब आपने कर लिए स्वात से लेकर वज़ीरिस्तान तक, कितने आपने मिलिट्री ऑपरेशन कर लिए इन्हीं मिलिटेंट्स के खिलाफ। कुड यू फिनिश देम? नहीं। अगर आप मिलिटरीली फिनिश नहीं कर सकते तो कुछ तो सबक सीख लो। अमेरिका आपसे बड़ी ताकत, नाटो आपसे बड़ी ताकत, दोनों मिलकर अफगानिस्तान की मिलिटेंसी को ख़त्म कर सके। अगर वो न कर सके तो उसे सबक सीख लो। आप इस चीज़ में खुदारा न पड़ो जो आप कर रहे हैं, इसके बड़े दूररस और सख्त खतरनाक नताइज। एक तो आपने मार्च में इसी तरह बमबारी कर ली थी कुनड़ और शायद खोस्त में या पक्तिका में, जी, उसके ऊपर भी रिपोर्ट्स आई थी। एग्जैक्टली। और अभी आपने ये कर ली और उसका अंजाम क्या हुआ? आपके अच्छे भले दोस्त तालिबान जो आपने इतने अरसे पाले, आप खुश हो रहे थे वो चले जाएं तो हमारी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ शायद बन जाए, हमारी दोस्त हुकूमत है। जब वो गए तो आपने उनको लेफ्ट राइट नाराज़ करना शुरू कर लिया, जो हमने आप पहले भी बातें कर ली। उसका रिएक्शन क्या हुआ? वो हिंदुस्तान की तरफ कुर्बत मज़ीद बढ़ती रही। पहले आपने नाराज़गी करवा ली तो मैंने कहा डिफेंस मिनिस्टर ने वायर उकेड़ दिया आपका जो
बार बाड़ लगाया था जी। और हिंदुस्तानी डेलीगेशन से मुलाकात कर ली।